Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that in the previous video I have started a new unit and that is mixed bag. Children, the name of the unit is mixed bag. It means it has exercises of different sections like prepositions, noun, adjectives, present form, past form. All these exercises are there for your practice. This unit is actually an integrated exercise, unit of integrated exercises for your practice. And we in the past video we have completed 2 exercises of this unit. You must have seen the video. We have completed 2 exercises. So in today's video we'll be doing the third one. But before that, let's revise what we have done in the previous video. Children, first one was match the words to make sentences. As you can see on page number 87 of your superb English grammar book, there are 3 parts. In the first part, there are some words are there. First part of sentence is there. In the middle part, is MR. The present form of verb is there, is MR. And in the third part, the remaining part of the sentence is there. So you have to match the first part with the third part using the middle part. First part और second part को third part को match करना है और कैसे match करना है? Middle part के letters को, middle part के words को use करना है. जो present form के verbs हैं उनको use करना है is MR. ये हम कर चुके हैं. We have already done this. We are just revising it. First one is the moon. Moon is a singular noun, so we will be using is with moon. The moon is hiding behind the clouds. First sentence is the moon is hiding behind the clouds. Second one is I. Pronoun I. So as we know that am always goes with I. Am goes with I. So I am polishing my shoes. I am polishing my shoes. Number 3 is children. Children is a plural noun. So children are swimming in the pool. Children are swimming in the pool. Number 4, your parents. Again plural pronoun. So are. Your parents are taking your proper care. Your parents are taking your proper care. Number 5, a florist is. Florist is one noun, singular noun. So a florist is selling flowers. Children, this was the first exercise. Then second one was again a mixed bag. Choose the correct option and fill in the blanks. Children, for every sentence there are 2 options. You have to select the correct option as per the sentence. First one is I blank my car. Children, I have always told you that am goes with I. So the options which are is washing and am washing. Options are is washing, am washing. Is washing, am washing. So I है, I के साथ हम am use करेंगे. I am washing my car. I am washing my car. Number 2 is a baker blank cakes and pastries. Children, baker is a singular noun. With singular noun, the verb which we use is which has s or es. अगर singular noun होता है तो उसके साथ जो हम verb use करते हैं वो कौन सा verb होता है जिसमें s या es लगा है when the noun is singular. So here baker is a singular noun, so we will use bakes. Though we have 2 options, bake और bakes. 2 option है हमारे पास, तो हम choose करेंगे bakes. A baker bakes cakes and pastries. A baker bakes cakes and pastries. Number 3, Suman is a girl. Blank is talkative. Children, options are he and she. Children, Suman is a girl or a lady, feminine gender है, and we use pronoun she for feminine gender. So we will say Suman is a girl
She is talkative. Next one is Suman. Why are blank talking now? Again, here we have to use a pronoun, the correct pronoun. Options are she and you, and we will choose you. Suman, why are you talking now? Suman, why are you talking now? Number 5. It is my piggy bank. It is my piggy bank. I keep my money in blank. Options are them and it. Children, piggy bank is a non-living thing. It has no gender, so we will use it. It is my piggy bank. I keep my money in it. वैसे भी them जो है वो plural के लिए है, इसीलिए हम it use करेंगे. Now moving on to the third exercise. अभी आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे exercise 3. And exercise 3 क्या है? Fill in the blanks with correct question words. अब हमें क्या करना है? आपके पास ऑप्शन है, आपको करेक्ट क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, इंटीग्रेटिव वर्ड यूज करना है. क्वेश्चन जिससे हम फ्रेम करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, है ना. हमने इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसी का एक तरह से ये रिविजन है. सो लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. फिल in the blanks, fill in the blanks with correct question words. This is the question, okay? Fill in the blanks with correct question words. Question words के option है and you have to choose the correct one. Okay? So first one is I blank. Sorry. First one is blank is your mother's name. Blank is your mother's name. Okay? तो यहाँ पे हमें एक करेक्ट क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है एंड वी हैव ऑप्शन. हम उस ऑप्शन में से लेंगे ब्लैंक इज योर मदर्स नेम. तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? व्हाट या फिर हु. दोनों में से हमें एक क्वेश्चन वर्ड चूज करना है, व्हाट या फिर हु. सो चिल्ड्रन, ब्लैंक इज योर मदर्स नेम. अब यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हाट एंड हु. हमें क्या करना है? करेक्ट क्वेश्चन वर्ड लेना है. व्हाट इज योर मदर्स नेम या हु इज योर मदर्स नेम. करेक्ट क्वेश्चन वर्ड कौन सा है चिल्ड्रन? करेक्ट क्वेश्चन वर्ड इज व्हाट इज योर मदर्स नेम. हम कभी भी ये नहीं बोलते हु इज योर मदर्स नेम. हु इज योर मदर पूछ सकते हैं, हु इज योर मदर, बट हु इज योर मदर्स नेम नहीं पूछते हैं. We always ask what is your mother's name या who is your mother. तो यहाँ पे नेम पूछा है तो we will write what. What is your mother's name? What is your mother's name? Got it? Who is your mother's name नहीं बोलेंगे हम. नंबर 2. अब चलते हैं नंबर 2 पे. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. Who is your mother होता है, who is your mother's name नहीं हो सकता. What is your mother's name? Next one is blank are you disturbing me? Disturbing me. And options है where या why. Children, now read the sentence. Blank are you disturbing me? अब हम क्या बोलेंगे? Where are you disturbing me? या why are you disturbing me? The correct question word is why are you disturbing me? तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं. Why are you disturbing me? Where are you disturbing me is the wrong question word. So here the appropriate question word is why are you
disturbing me? Why are you disturbing me? Number 3. Black dress is yours. And options क्या है हमारे पास? We have when or which. When या which. When dress is yours या which dress is yours? Which is the correct word? Which. कौन सी वाली तुम्हारी ड्रेस है? कब तुम्हारी ड्रेस है? नहीं, कौन सी तुम्हारी ड्रेस है? बहुत सारी ड्रेसेस होंगी या 2-4 ड्रेसेस हैं, उसमें से हम पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वाली तुम्हारी ड्रेस है. कब तुम्हारी ड्रेस है नहीं होता है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे which. Which dress is yours? Which dress is yours? तुम्हारी इसमें से कौन सी तुम्हारी ड्रेस है? कौन सी तुम्हारी ड्रेस है? ठीक है. Then number 4. Dash do we celebrate Gandhi Jayanti? Black do we celebrate Gandhi Jayanti? और हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है? What and when. What and when. So which is the correct question word? When. When do we celebrate Gandhi Jayanti? Children, we use when we have when the question is related to time. टाइम से रिलेटेड जब क्वेश्चन होता है तो हम when यूज करते हैं. जब हमें चॉइस वाला होता है तो which होता है. रीजन पूछते हैं तो why. ठीक है. What होता है when we want to know the object, we want to know something. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन वर्ड यूज किए. What is your mother's name? Why are you disturbing me? Which dress is yours? When do we celebrate Gandhi Jayanti? इसी तरह से हाउ के क्वेश्चंस होते हैं, वेयर के क्वेश्चंस होते हैं, होम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हु के क्वेश्चंस हो सकते हैं. ये तो सिर्फ WH वाले हैं. WH, WH, WH एंड WH. All the questions are WH questions. सब WH से स्टार्ट हो रहे हैं, बट देयर आर अदर क्वेश्चन वर्ड्स ऑल्सो, है ना. बाकी और भी कई तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाउ, वेयर, वाई तो यूज हो चुका है, देन whom, whose, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स और होते हैं और उनसे और भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं हम. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3. एक्सरसाइज 3 वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज नंबर 4. अब इसमें क्या करना है? क्रॉस द रॉन्ग ऑप्शन. यहां पर भी 2 ऑप्शंस दिए हैं. जो ऑप्शन गलत है उसे आपको क्रॉस करना है. ओके, यू हैव टू क्रॉस द रॉन्ग ऑप्शन. तो चलिए देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है जो गलत है, विच इज रॉन्ग. Okay, let's write question number 4. Cross the wrong options. The wrong options. जहां भी गलत ऑप्शन है उसको हमें क्रॉस करना है. अब क्या है ये? चलिए इसको समझ लेते हैं पहले. फर्स्ट वन इज B comes between या with
as you can see, the first sentence is B comes between or with A and C. ये जो लेटर B है ये A और C के बीच में है कि A और C के साथ में है. बिटवीन या विद में से हमें जो सही वाला है उसको रखना है और जो गलत वाला है उसको क्रॉस कर देना है. सो चिल्ड्रन, ABCD में क्या होता है? B कहाँ पे आता है? A और जब हम ABCD लिखते हैं, what is the position of B? It is between A and C. A and C के ये बीच में है. कहाँ पर है? A और C के बीच में. तो between. हाँ, this is the correct word and this is wrong. So we will say B comes between A and C. Okay? B comes between A and C. मतलब जो B है वो A और C के बीच में आता है. आता है ना? Between का मतलब होता है दो चीजों के बीच में. किसी भी दो वर्ड्स, दो थिंग्स, कुछ भी दो चीज के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं between. तो B है वो A और C के between है. It is not with A and C, it is between A and C. तो हमने with को क्रॉस कर दिया. We cross the word with. With is the wrong word, wrong option. Number 2. These strawberries are fresh and but sweet. Now children, you have to select correct option between and but. आपके पास ऑप्शन क्या है? And और but है. Which option is correct with the sentence? इसको पढ़ें फिर से. These strawberries are fresh but sweet. या these strawberries are fresh and sweet. Which is the correct? And या but? फिर से देखिए. These strawberries are fresh and sweet बोलेंगे या हम कहेंगे these strawberries are fresh but sweet. Fresh तो है पर मीठा है. Fresh है और मीठा है. And yes, the correct option is and. So we will cut but. But को हम कट कर देंगे. But cut. Rhyming word हो गया. हम but को कट कर देंगे क्योंकि वो इस सेंटेंस के साथ करेक्ट नहीं जा रहा है. ठीक है. बट इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड. इसकी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, वर्ड भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए बट जो है वो सही ऑप्शन नहीं है. बट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. दीज स्ट्रॉबेरीज आर फ्रेश एंड स्वीट. These strawberries are fresh and sweet. Got it? चलिए number 3. Do you want milk and or coffee? Now here the choice is between and or. choice किसमें है? and और में हमारी choice है. Do you want milk and coffee? Do you want milk or coffee? जब आप किसी को ऑफर करते हो तो आप क्या पूछेंगे? आपको दूध और कॉफी चाहिए? ऐसे पूछेंगे या हम पूछेंगे आप दूध लेंगे या कॉफी? हम किसी को अगर पूछ रहे हैं कि डू यू वांट मिल्क और कॉफी, या हम ऐसे पूछेंगे डू यू वांट मिल्क एंड कॉफी. कोई व्यक्ति एक साथ दूध और कॉफी तो पिएगा नहीं. कॉफी में दूध मिला के कॉफी बना सकते हैं, ब्लैक कॉफी की जगह मिल्क वाला कॉफी बना सकते हैं, बट दैट विल बी मिल्क कॉफी.
लेकिन दूध और कॉफी एक साथ हम किसी को ऑफर नहीं कर सकते, या तो दूध या तो कॉफी, है ना। तो हम ऑप्शन देते हैं, डू यू वांट मिल्क और कॉफी, आप दूध लेंगे या कॉफी लेंगे। हम ऐसा पूछ सकते हैं कि आप मिल्क लेंगे या कॉफी लेंगे। आप मिल्क लेंगे और कॉफी लेंगे नहीं पूछेंगे हम, आप मिल्क लेंगे और कॉफी लेंगे ऐसा नहीं पूछते हैं। डू यू वांट मिल्क और कॉफी, ठीक है। ऑप्शन हमारा है डू यू वांट मिल्क और कॉफी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो और है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को चॉइस दे रहे हैं, हमने किसी को चॉइस दिया है कि वो मिल्क लेगा या फिर कॉफी लेगा। एंड व्हेन वी गिव चॉइस वी यूज वर्ड और, ठीक है। हम और वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी को चॉइस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, ये थर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको सेंटेंस में जो यहाँ पर जो बोला गया है कि क्रॉस द रॉन्ग ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, ये आपको देखना है कि कौन सा वाला जो है वो सेंटेंस के साथ सही सही जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्ड गलत है या उसकी स्पेलिंग गलत है, बस हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे 4, सेंटेंस नंबर 4। I see oblique saw a snake last night. I see oblique saw a snake last night. Last night मतलब आखिरी रात, नो। लास्ट नाइट का मतलब जो रात जस्ट बीत गई है, पिछली रात, जो नाइट अभी जस्ट बीती है, दैट इज कॉल्ड लास्ट नाइट। यहाँ लास्ट नाइट का मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी की आखिरी रात, नो। लास्ट नाइट का मतलब जो जस्ट अभी बीती हुई है, पिछला जो रात था जो अभी जस्ट पास हुआ है वो वाला, जो अभी तुरंत बीता है, ठीक है, बीता हुआ रात। तो ये क्योंकि ये बीत चुका है रात, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे या सॉ यूज करेंगे। सी प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और सॉ पास्ट के लिए। जो चीज हो चुका है वो सॉ, जो चीज है वो सी। तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, सी या सॉ, क्योंकि ये जो है यहाँ पे वर्ड है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट वो रात है जो बीत चुकी है। तो जब बात हो चुकी है, पास्ट हो चुका है, तो हमें वर्ब भी पास्ट वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वो रात है जो जस्ट पास हो गई है, जो हो चुका है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई सॉ अ स्नेक लास्ट नाइट, मतलब बीते हुआ रात में, पिछली रात मैंने एक स्नेक देखा। देख रही हूं नहीं, आई सी नहीं, देखने की, देखा। आई सॉ अ स्नेक लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट बीते हुए रात को मैंने एक स्नेक देखा, पिछली रात मैंने एक स्नेक देखा, देख चुके हैं, ठीक है। आई सॉ अ स्नेक लास्ट नाइट, आई सी अ स्नेक लास्ट नाइट नहीं, जो रात बीत चुकी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने एक स्नेक देखा, पिछली रात मैंने एक स्नेक देखा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सॉ, और सी जो है वो एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। सी इज अ रॉन्ग ऑप्शन हियर। नंबर 5, वुल्फ या wolves are chasing the deer. यहां पर देखिए, अब यहां स्पेलिंग वाला मैटर है, ठीक है। wolves या wolves या wolves, which is the correct plural of wolf? WOLF wolf, एक भेड़िया, WOLF wolf। तो wolf का जो प्लूरल है वो क्या होता है, WOLFS wolves होगा या wolves होगा।
Here you have to check the spelling of the plural of wolf. Wolf का जो plural है उसकी आपको spelling check करनी है, ठीक है? Wolves या wolves, कौन सा होगा सही? Wolves. Children, हमने पढ़ा था रूल में कि जब कोई वर्ड लास्ट में f होता है, जब किसी नाउन का स्पेलिंग के एंड में f होता है तो उसका प्लूरल हम बनाते समय f को हटाकर VES लिखते हैं. ये हमने पढ़ा था रूल में, है ना? कोई भी नाउन की स्पेलिंग के एंड में अगर f है या FE है तो उसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उस f को या FE को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर VES लिखते हैं. तो वुल्फ की स्पेलिंग होती है WOLF, लास्ट में F है. तो जब भी नाउन के लास्ट में F होगा तो उसे हटाकर हम करेंगे VES, WOLVES. So the correct option is WOLVES. ठीक है? ये वुल्फ गलत है. Wolves are chasing the deer. Chasing मतलब पीछा करना, शिकार करते हैं ना, पीछा करना. Wolves are chasing the deer. Wolves जो है वो डियर को चेज कर रहे हैं. ठीक है? ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 5. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 6. सम्राट वॉश या वॉशेस his hands with soap. Excuse me. Okay. Samrat is the name of a boy or a man. Male word है ये. Samrat wash या washes his hands with soap. हम wash use करेंगे या washes use करेंगे. Children, again I will remind you that जब मैंने आपको ये पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि जब noun singular होता है तो verb हम कौन सा choose करते हैं जिसमें s या es लगा हो. Whenever the noun is singular, we choose the verb which has s or es. तो यहाँ पे सम्राट एक है, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है. सम्राट इज अ सिंगुलर नाउन, एक ही लड़के का या एक आदमी का नाम है. ये एक मेल नाम है और ये एक है. तो सम्राट हम यूज करेंगे वॉशेस. सम्राट वॉशेस हिज हैंड्स विद सोप. सम्राट वॉशेस हिज हैंड्स विद सोप. आपको समझ में आया? जब भी सिंगुलर होगा आप वर्ब में एस या ईएस लगाओगे. ठीक है? प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है. जब हम प्रेजेंट फॉर्म पढ़ते हैं, प्रेजेंट फॉर्म करते हैं तो वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना? सम्राट वॉशेस हिज हैंड्स विद सोप. अब इसको इरेज कर दें. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 7. अब इसमें 7th सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं. My teachers are very nice. My teachers are very nice. I respect they या
them. My teachers are very nice. I respect they या फिर them. Children, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमें सेलेक्ट करना है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो हम क्या यूज करेंगे? माई टीचर्स आर वेरी नाइस. आई रिस्पेक्ट देम. दे जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. देम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और क्योंकि यहाँ पर टीचर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है, दे आर रिस्पेक्टेड, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, दे आर रिस्पेक्टेड बाय समबडी. सो हियर आई रिस्पेक्ट देम. यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे देम. ठीक है, वो एक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए. माई टीचर्स आर वेरी नाइस. आई रिस्पेक्ट देम. Children, we have completed a fourth exercise also. Few more exercises are left, but that we will do in the next video. आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर देते हैं. I hope you have understood, and we will meet in the next video. Thank you.